Good afternoon, dear students. Next, we are in the series of this in this particular topic is shear force and bending moment. Now we are going to be see we can say the different kind of problems which subjected to the triangular load. So how the triangular load affect the shear force and bending moment diagram. So let's see. Okay. So this is a problem which is a triangular load. You can see there, dear student, this is a triangular load. This one is a triangular load, and this is a uniformly distributed load. Both are acting one. This is a overhanging beam. Overhanging beam and simply supported beam. The method of solving the problem are same. Okay, so what will be our first step? First up step is that first we have to be calculate the reaction at support A and support B. ठीक है, तो हम सबसे पहले सपोर्ट ए एंड सपोर्ट बी पे रिएक्शन फाइंड आउट करते हैं. इन केस क्वेश्चन में ये ए बी नहीं लिखा है, ये नोटेशन इज नॉट मेंशन, सो इन दैट केस फर्स्ट एट द सपोर्ट ए, सेकंड सपोर्ट बी and rest of the where the load acting or load is starting at that point आप क्या करिए, उसको नोटेशंस को लिख दीजिए. और इस तरह से ये है लोड डायग्राम. For this load diagram, we have to be calculate the shear force and bending moment diagram. So, what the shear force and bending moment reflect? It show the variation of the shear force and bending moment at the length along the length of the beam. So, ये length of the beam है. Let's move to the next. First क्या करेंगे? We will calculate the shear force. We will calculate the reaction at support A and reaction at support B. As simple as the method is like before. आप देख लीजिए. So in this time we are assuming the bending moment at point A is equal to 0. This is the summation of MA equal to 0. It means the all the force which is acting anywhere in this beam, the moment of that force about the point A is 0. ये इसका मतलब है. चलिए next. So first we take this RB. So RB here, and what is the distance of RB from A? This is 3 meter and 2 meter means 5 meter. So RB into 5, and let's see what will be the direction, either clockwise or anti-clockwise, because we are going to be calculate the moment. So we will say the clockwise and anti-clockwise. So this load tried to be moved this beam in the anti-clockwise with respect to point A. So कितना है? ये हो गया into 5, और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस साइन. देन ए के बाद नेक्स्ट लोड कौन सा है जरा देखिए, ये ट्राइंगुलर लोड है. सो ट्राइंगुलर लोड नाम है, तो वी विल फर्स्ट कैलकुलेट टू गेट द वैल्यू ऑफ दिस ट्राइंगुलर लोड. आपको करना क्या है, जस्ट एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाना है, और वो ट्राइंगल का एरिया विल गिव द वेट और लोड ऑफ उस दैट ट्राइंगल. आइए देखते हैं. दिस इज अ ट्राइंगल. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल? 1/2 b into h. ये देखिए 1/2. दिस इज h. इच h कितना है इसका? 3 एंड b a है 60. देखिए दिख रहा है ना, 60 किलोन्यूटन पर मीटर. तो आप यहाँ से निकाल लीजिए ये 1/2 into 60, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें? वेट पे. दिस इज अ वेट ऑफ दिस
ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का जो लोड है उसका वेट हो गया 1/2 3 into 60, देन यू आर गोइंग टू बी फाइंड द मोमेंट। मोमेंट कहाँ निकलना है, इस लोड का अबाउट ए, 0.8 मींस इसकी लोड की डिस्टेंस भी चाहिए। तो इस ट्रायंगल का जो सीजी होता है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, वो बेस से h/3 डिस्टेंस में एक्ट करती है और उसके अपेक्स से 2h/3 पे एक्ट करती है। यू माइट बी अंडरस्टैंड या यू माइट बी नोइंग, बिकॉज यू आर ऑल दिस थिंग यू हैव डिस्कस्ड इन योर फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट मैकेनिक्स। आपने मैकेनिक्स में ऑलरेडी ये सब पढ़ा है। किसी भी ट्रायंगल का सीजी बेस से h/3 और अपेक्स से 2h/3 पे एक्ट करता है। सो हमको कहाँ से निकालना है, अपेक्स से। ये देख लिए, यहाँ से निकालना है। तो अपेक्स से इसकी सीजी की डिस्टेंस कितनी हो गई, 2h/3 इंटू दिस डिस्टेंस। कितनी है डिस्टेंस, 3। तो 2 ये हो गया 2/3 इंटू एच। तो ये चीज आपको याद रखना है, इसको आप बाद में कलरफुल कर लेना। तो ये वाला पार्ट जो है आपका 1/2 3 इंटू 60, ये वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2/3 इंटू 3 ये उसके किसको रिप्रेजेंट करता है, उसकी सीजी की डिस्टेंस। कहाँ से, अपेक्स से। बेटा इसको हमेशा याद रखना, गड़बड़ मत करना। बेस से h/3 होगा, अगर इधर से लो, यहाँ कहीं इधर डी से निकालना होता है इसका, या सॉरी बी से, इस पॉइंट से, तो अलग कहानी होती। फिर आप यहाँ से कैलकुलेट करते, और यहाँ से कर रहे हो तो 2h/3। ये बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं, यू जस्ट राइट डाउन, ठीक है। फिर आइए, अब नेक्स्ट लोड कितना है, 20। जरा गौर फरमाइए, 20 कितने दूरी पे ऐड कर रहा है, ये कितने डिस्टेंस पे ऐड कर रहा है, ये वाला पार्ट आप जरा देखिए। 2 इंटू 2 मतलब 4, तो टोटल कितना हो गया ये 4, तो 20 इंटू 4। लेकिन वो अपने डिस्टेंस के आधे में ऐड करता है। तो ये देखो जरा, 2 इंटू 2 4, और ये 3 है। यहाँ से हमको किसके अबाउट निकालना है, ए के अबाउट। तो ये 3 तो यहाँ तक पहुंच गए, फिर इसका आधा 2, तो टोटल कितना हो गया 5। ये देख रहे हो ना, 5 कैसे आया, 5 आया। ये ए से सी की डिस्टेंस है 3, देखो जरा, ए से सी 3 प्लस इसका आधा, सी डी का आधा 2 प्लस 2, तो ये टोटल हो गया 5। देन ये लास्ट में एक लोड लग रहा है 20, तो 20 की डिस्टेंस यहाँ ए से कितनी है, 3 2 2 7 और इक्वल टू 0। देन you will get the RV is equal to 144 किलो न्यूटन। ये है मेथड वही है, बस आपको थोड़ी सी, you have to be remember that which kind of load is acting, whether it is UDL, point load or triangular load. In case of a triangular, you have to be, how to calculate the load value, just put the formula of a triangle. Then if you want to be find the bending moment or moment, so you have to be consider the distance of its CG, वो उसके CG की डिस्टेंस जो है आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलते हैं आगे, देख लिया आपके पास आर भी आ गया 144 किलो न्यूटन। अब तो फिर कुछ नहीं है, अब आप क्या करो, इधर से इधर ऊपर से और नीचे से लगने वाले दोनों लोड को बैलेंस कर दो, इक्वल टू 0 पुट कर दो। वो एक तरीका है। तो जो ऊपर जा रहे हैं लोड उसको पॉजिटिव रख लो, जो नीचे आ रहे हैं उनको नेगेटिव रख लो, इक्वल टू 0 पुट कर लो। तो समेशन ऑफ Fy इक्वल टू 0। तो आर ए ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ आर ए, तो प्लस प्लस पॉजिटिव ले लो। आर बी 144 निकाला, प्लस करके आर बी 144 ले लिया। अब ये ट्राइंगुलर का ये जो नीचे आएगा, ऊपर से लग रहा है तो नीचे की तरफ एक्ट करेगा। ये कितना है, इसका ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 3 इंटू 60, 1/2 3 इंटू 60। देन यूडीएल कितना हो गया 20 इंटू 4, ये जितने डिस्टेंस में ऐड कर रहे हैं, एंड माइनस ऑफ दिस 20 इज इक्वल टू 0। देन RA is equal to 46 किलो न्यूटन। सो इस तरह से आप RA and RB को निकाल लिया आराम से,
ठीक है। जब आपके पास आर ए एन आर बी हो गया तो अब आप वही पुरानी मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आपको ऑलरेडी आती है। उस चीज़ में कोई आई थिंक कंफ्यूजन नहीं है। हम पिछले 2 से 3 दिन से वी कंटिन्यूइंग वी आर अप्लाइंग दैट मेथड कॉन्सेप्ट वही है। कहाँ कहाँ आप लोगे सेक्शन, एक तो जहाँ से लोड एकदम एग्जैक्टली बीम स्टार्ट हो रही है तो 0 0 हो गया, फिर 1 1 ले लिया, फिर 2 2 ले लिया जहाँ पर लोड खत्म हो रहा है, फिर देखिए जरा यहाँ पर 3 3 4 4 5 5 6 6, फिर इसको आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है। सो आगे चलते हैं, हम निकाल लेंगे इसमें से। ये देख लीजिए V उस सेक्शन पे फोर्स या तो F से रिप्रेजेंट करते हैं या V से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इट डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो V 0 0 है, यहाँ पास लोड बिल्कुल शेयर फोर्स 0 है तो यहाँ पर 0 हो गया। फिर उसके बाद जैसे ही आप 1 पे आए तो RA अंडर आ गया, तो RA अंडर आया तो 46 आ गया। अब जैसे 46 लिखा साइन की बात आ गई, तो साइन के लिए मैं आपको पहले बोला था ये वाला एक बीम ले लो, ये सेक्शन ले लो, ये सेक्शन XX ले लिया आपने। तो इस केस में आप क्या करते हो कि यहाँ से जो ऊपर से नीचे की तरफ लोड आएगा, ऊपर से नीचे पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव, मतलब जो लोड ऊपर से नीचे आएगा ये पॉजिटिव हो जाएगा बेटा, ये जो नीचे से ऊपर जाएगा ये वाला सब निगेटिव हो जाएगा, और इधर ऐसे वाइस वाइस वर्सा है। तो ये साइन कन्वेंशन है। तो चलिए आप आइए V11 पे, 11 पे आप जरा बताइए कि 46 किलो न्यूटन है, मतलब ये कंडीशन हो रही है, ये वाली, तो कितना हो गया ये देखो, पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है। अब इसके बाद हम 2 2 पे चलते हैं। जैसे ही आप 2 2 पे आए तो सबसे पहले ये 46 तो आ ही जाएगा। अब गौर फरमाइए 46 आ गया आपका पॉजिटिव, नीचे से एक्ट कर रहा है। नाउ ये ट्रायंगुलर उस इस सेक्शन 2 2 के लेफ्ट साइड से टॉप से नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, मतलब निगेटिव होगा। अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल मतलब 1/2 BH, 1/2 B, ये इसकी ऊंचाई, इसकी ये वाला पार्ट लेंथ कितनी है 3, ये वाला कितना है 60, तो सिंपली इसको सॉल्व कर दिया तो -44 किलो न्यूटन। देन दिस -44 किलो न्यूटन कम टिल दिस, कहाँ तक आ गए, ये 44। अब देखो कोई लोड आया क्या, हाँ आया ना, कितना आया, ये यहाँ तक पूरा हम लेंगे इसको, यहाँ तक, यही तरीका है। तो ये कितने का है 20, कितने का यूडीएल था ये 20, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है 2 पे, तो इसको सॉल्व कर लिया तो ये हो गया -84 किलो न्यूटन। देन अब 4 4 में आइए, यहाँ पर आ जाते हैं हम इस पोर्शन पे, तो ये यहाँ से चला जाएगा एज इट इज -84 प्लस ये वाला जो आपका ये 1, ये वाला ऐड उसके अंदर आ गया, लेकिन ये चूंकि नीचे से लग रहा है इसलिए पॉजिटिव हो जाएगा, तो +60 हो गया बेटा। देन +60 फिर आ जाएगा नेक्स्ट 5 5 में, फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस पे कितना है 2 मीटर की डिस्टेंस है ये देखिए, और कितना है 20 × 2, सो इट विल बिकम +20, ये फिर +20 यहाँ आ जाएगा, फिर ये देखो +20 यहाँ ऐड कर रहा है उसके, तो ये माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। सो दिस इज एज सिंपल मेथड व्हाट यू हैव ऑलरेडी सॉल्विंग फ्रॉम लास्ट 3 days, वही मेथड है। बस आपको एक चीज़ बताना था कि ट्रायंगुलर लोड में कैसे वर्क होता है, देन उसके बाद तो कुछ आपको है ही नहीं। देन अब आप क्या निकालोगे, अब आपको पहले से पता है कि जहाँ पर ट्रायंगुलर लोड होता है उसका शेयर फोर्स का मैं सबसे पहले डायग्राम बता चुका हूँ, वहाँ पर पैराबोलिक नेचर का होता है शेयर फोर्स। जहाँ पर यूडीएल होता है वहाँ पर ये इंक्लाइंड लाइन, ये क्या होता है इंक्लाइंड लाइन होता है, शेयर फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो ये देख लीजिए ये यहाँ पर आया, पहले यहाँ पर 0 है लोड, यहाँ पर पॉजिटिव 46 है, फिर इस पॉइंट पे आ जाइए आप 2 2 पे आइए, ये देखिए हाँ कितना था -44, आप पैराबोला को ऐसे मिला दीजिए तो ये -44 का हो गया। फिर अपन यहाँ आते हैं 3 3, ये वाला लाइन कितना है 84, पहला एक पॉजिटिव 60, पहले वाला है -86 84, फिर उसके बाद 68 होता है, ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ये टोटल जो होगा 100 इसके बराबर ही होगा 144, ये दोनों स्ट्रेच। तो आप इसको क्या होता है जब ये होती है तो इंक्लाइन लाइन, तो आप इसको इंक्लाइन लाइन से जोड़ दिया, यूं गए ऊपर, फिर इसके बाद यहाँ देख लीजिए 20, फिर उसके बाद 0,
तो इसको फिर इंक्लाइन राइट से जोड़ दिया। तो दिस इज अ डायग्राम ऑफ शियर फोर्स फॉर द गिवन लोड डायग्राम। ठीक है, अब बेंडिंग मोमेंट निकालना है आपको। अब क्वेश्चन में ये भी पूछा था कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, यहाँ होगा जहाँ पर ये साइन चेंज कर रहा है। ये देखो यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। सबसे पहले कैसे निकाले थे, कोई बता सकता है क्या? यहाँ पर अगर मेरे को निकालना है ये डिस्टेंस इसकी यहाँ से ए से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की डिस्टेंस, ऐसा कर सकता हूँ मैं, इस पॉइंट को ऊपर की तरफ ऐसे प्रोजेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ कहीं आ रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, तो हमको अब सबसे पहले ये निकालना पड़ेगा। अगर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो ये वाली डिस्टेंस, तो कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं, देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ के लिए शेयर फोर्स की इक्वेशन बना लो। उस शेयर फोर्स की इक्वेशन को यहाँ जो जीरो है, जीरो के अबाउट पुट कर दो। यू विल गेट, सपोज इफ इट इज एक्स, तो आपकी एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे लास्ट टाइम कल किया था हमने। सो इट्स नॉट ए बिग टास्क। आपको अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होगे तो आपको पता होगा, नहीं कर रहे होगे तो फिर तो कोई घर वाला भी नहीं बता सकता। ठीक है, चलो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है ना, ये ले लिया एक्स एक्स सेक्शन और इसकी एक्स मान लिया, और इस डिस्टेंस को निकालने का तरीका मैंने कल आपको बता ही दिया था। देखिए आज भी देख लो क्या किया हमने, इस एक्स एक्स पे बेंडिंग मोमेंट निकाल लिया। बहुत सिंपल है। इस लोड को देखो, यहाँ लोड कितना है 46 माइनस ये एक्स हो गया, जो पहले 3 था उसकी जगह एक्स ले लेगा। देन मेथड इज सेम, कोई दिक्कत नहीं है, वो वैसे की वैसी ही रहेगी जैसे कि होती है। तो यहाँ x की वैल्यू है कैलकुलेट 2.14। अब उस 2.14 पे आप बेंडिंग मोमेंट निकाल लिए जैसे कि आपने निकाला था। चलिए MA और MD तो जीरो होगा, एंड है हमेशा। अब C पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, C पॉइंट में आप निकाल लीजिए। ये लोड है, इसकी डिस्टेंस C से कितनी है 3 मीटर, मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ ले जा रहा है पॉजिटिव। उसके बाद ये वाला लोड 1/2 3 इंटू 60। अब इस C से इसकी डिस्टेंस देखो 1/3 क्या था h/3, तो ये 1/3 इंटू दिस हाइट -3, तो ये मिल गया यहाँ पर 48। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेक्शन, लेफ्ट हैंड साइड सेक्शन कंसीडर करने पे। उसके बाद बी पे आ जाइए बेटा, यहाँ पर अब राइट साइड ले लो, क्योंकि नहीं तो इधर इतना बड़ा लोड पूरा कंसीडर करने का, अब इधर से ले लो तुम जो उसने किया। तो ये हो गया -20। आप देखो जरा, ये बीम को नीचे की तरफ लेके जाएगा, -20 इंटू 2 माइनस दिस 20। अब ये देखिए इधर आइए, हमको कहाँ निकालना है, किस पोजीशन पे, बी पे निकालना है। तो जरा देखिए जरा, बी पे जब निकालोगे बेटा तो आपको पूरा नहीं लेना है, इसके इधर का। तो टोटल कितना है 20 इंटू 2 और उसका आधा 1, तो ये हो जाएगा -80 किलो न्यूटन मीटर कंसीडरिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। अब बेंडिंग मोमेंट निकाल लीजिए, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट तो आपने निकाल लिया है, एक्स की वैल्यू 2.14, तो 2.14 पे अब आप निकाल लीजिए वो वैल्यू रख के, तो यू विल गेट द मैक्सिमम एब्सोल्यूट बेंडिंग मोमेंट। देखिए सारी वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, यहाँ तक मैक्सिमम तक ये पूरा हो जाएगा क्यूबिक, इट्स कॉल्ड ए क्यूबिक। थोड़ा सा ज़्यादा और गहरा होता है पैराबोला से। फिर इसके बाद एग्जैक्टली यहाँ तक, यहाँ पर भी क्यूबिक, यहाँ भी पैराबोला है, यहाँ तक ये बोला क्यूबिक आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये वाला अपने पास 80 है पॉइंट, पहले तुम 0 ले लो, फिर 65.75 ले लो, फिर उसके बाद आप ये वाला पॉइंट अपने पास नोन है ये ले लो सी पे, फिर इसके बाद ये नहीं नोन है हमको, फिर 80 नोन है, फिर यहाँ से यहाँ तक डायरेक्टली ऐसे मिला दो पैराबोला। फिर उसके बाद इधर भी पैराबोला मिलेगा, यू मिला दो, तो एक क्यूबिक और 2 पैराबोला मिल गए। ये हो गया बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम। एक्चुअल में ये तीनों डायग्राम जब आप एग्जाम में बनाएंगे तो ये ऊपर नीचे होंगे। सबसे पहले लोड डायग्राम, फिर शेयर फोर्स डायग्राम, फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, क्योंकि स्लाइड में आ नहीं रहा है इसलिए हमने ऐसा करके दिखाया है। तो ये है तरीका। तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिल गया। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। अब आप क्या करोगे, ये डिस्टेंस मान लोगे और इस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन निकाल के यू जस्ट इक्वेट कर दोगे किससे, 0 के।
देखिए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर एज वी डिस्कस, तो कितना आ गया 1.05 मीटर। सो ये ही तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो आप और भी